Hi everyone, welcome to our channel. Here you will learn so many skills in English language. Today we are going to discuss writing skills in English, so let's get started. Here are some key writing skills in English, and these are grammar and punctuation. The whole system and structure of a language is called grammar, and punctuation is the marks such as full stop, comma, and brackets used in writing to separate sentences and their elements and to clarify their meaning. Number 2 is spelling and vocabulary. Spelling is a statement of the exact meaning of a word, especially in a dictionary. And vocabulary is the body of the words used in a particular language. Number 3 is clarity and concision. Clarity is choosing your words in a way which is easy to understand, and concision is in a language what enables people to articulate things and ideas and their attitudes in an intelligible form and to transmit the results to other people. Number 4 is organization and structure. Organization is the arrangement of a language in a better way, and structure is also arrangement of words, phrases and sentences to create well-formed syntax. Number 5 is coherence and cohesion. Coherence refers to the logical and consistent interrelation of ideas, and cohesion refers to the force or action that brings elements together and keeps them united within a particular system or structure. It can be understood as the internal sticking or bonding. Next one is tone and voice. Tone is how you express yourself in the moment. It can change depending on context. And the voice is your underlying personality. It shouldn't change in different contexts. आज की इस वीडियो में कुछ राइटिंग स्किल्स आपके पेश नज़र हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रामर और पंक्चुएशन को। ग्रामर क्या है? ग्रामर असल में वो तमाम बुनियादी साख्त है जो एक ज़ुबान के अंदर मौजूद होती है और ज़रूरी होती है उसके लिए, जिससे मिलकर ये ज़ुबान जो है वो बनती है। पंक्चुएशन क्या चीज़ होती है? कॉमास, फुल स्टॉप जो अक्सर आप सेंटेंसेस के एंड में, बीच में, दरमियान में इस तरह से आप लगाते हैं, वो होते हैं। आगे देखते हैं स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी। स्पेलिंग क्या है? किसी भी लफ्ज़ को जोड़ने के लिए जो मुख्तलिफ किसी अल्फाज को जोड़ने के लिए जो चंद लफ्ज़ जो है वो यूज़ किए जाते हैं, उनको एक साथ इकट्ठे लिखा जाता है, उसको स्पेलिंग बोलते हैं। वोकैबुलरी क्या है? बहुत सारे ज़ख़ीरा अल्फाज, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के नाम, वो हैं वोकैबुलरी। आगे देखते हैं क्लैरिटी और कंसिजन के बारे में। क्लैरिटी क्या है? यानी आपने इंतहाई साफ़ अंदाज में बात करनी है, या साफ़ अंदाज में कुछ कहना है, या साफ़ अंदाज में कुछ जुमले जो हैं वो आपने लिखे हैं, उसको क्लैरिटी बोलेंगे। कंसिजन क्या है? यानी जो चीज़ आप बता रहे हैं वो वाज़िया हो, उससे सही समझ आ रही हो। आगे देखिए ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक तरतीब जो है मुकम्मल ज़ुबान के अंदर, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। स्ट्रक्चर क्या है? यानी उसकी साख्त, उसको बनाया किस तरह जा रहा है, किस चीज़ के साथ वो चीज़ मिलकर बन रही है। कोहेरेंस को देखते हैं। इसका मतलब है जो मुख्तलिफ जुमलों का या मुख्तलिफ लफ्ज़ों का एक फ़्लो बना रहे हैं, जो एक बात आप बता रहे हैं, उसको मुख्तलिफ जगहों पर आपस में तोड़कर इस अंदाज से पेश करना ताकि आपकी जो वो पूरी चीज़ आप समझाना चाह रहे हैं उसको अच्छे से आप समझा सकें, यानी मुख्तलिफ अनासिर को एक साथ रख कर। कोहेजन को देखते हैं। कोहेजन जो है ये ऐसी टर्म है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स या अनासिर को वो आपस में जोड़े रखती है ये चीज़, यानी वो आपस में जब आप दो जुमले इस तरह से बयान करते हैं कि एक जुमले के अंदर जो बात बताई जा रही हो वो तब तक मुकम्मल ना हो जब तक कि उसे दूसरे जुमले में भी कुछ किसी और के चीज़ के साथ रिलेट करके उसे एक्सप्लेन ना किया जाए, तो वो चीज़ अपनी जगह पर सही साबित नहीं होती। अच्छा, आप देखते हैं टोन एंड वॉइस को। ये क्या है? टोन क्या है आपका लहजा, और वॉइस क्या है आपकी आवाज़। बहुत ही आसान है। Don't forget to subscribe our channel as it's free of cost learning for you. We are trying to bring you the best learning materials for you which fulfills your needs. Now we are going to see more reading skills, and those are number 7, style and syntax. Style is a method in a language by using a unique strategy. Syntax can be defined as a set of rules, principles, and processes that preside over the structuring of a sentence in any given language. Then there is paragraphing and formatting. Paragraphing is a collection of sentences in a way that is understandable. Formatting is also a style of a language. Number 9, editing and proofreading.
Editing means making changes in a language, and proofreading means that a text which is readable and error-free. Next one is adapting to different writing styles. Example given is formal, informal, persuasive, and narrative. Formal styles are written to officials, and informal styles are written to your relationships like sister, brother, parents, and your friends. Persuasive style of writing is known as it is a style in which we write to a person for convincing on some problem. And narrative style, so easy. It is a style which is a descriptive and in a easy way to understand. स्टाइल का मतलब होता है एक ख़ास तरीके का जिसके अंदर आप लिख रहे हों. सिंटेक्स क्या होता है? जो सेट ऑफ रूल्स यानी मुख्तलिफ जो कवानीन हैं आपकी ज़ुबान के उनको फॉलो करके आप जो लिखते हैं. पैराग्राफिंग क्या है? पैराग्राफिंग ये है कि मुख्तलिफ जुमले जो हैं उनको आपस में जोड़ कर आप एक अच्छी और सही जो है वो इबारत बना सकें जिसमें तमाम वो जो बात आप बता रहे हो मुकम्मल तौर पर सही अंदाज में बताई जाए. फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग भी एक तरह से एक तरीक़ेकार ही है, एक स्टाइल ही है जिसमें आप जो है वो उसको लिखते हैं. एडिटिंग क्या है? एडिटिंग ये है कि आप एक चीज़ जो है उसके अंदर चेंजिंग्स लाकर ख़ुद से जो है वो उसकी सेटिंग करते हैं राइटिंग स्टाइल में, यानी आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसके सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक इस चीज़ की एडिटिंग कर सकते हैं. एक चीज़ आप लिखते हैं, आपको नहीं पसंद आ रही, आप उसको दोबारा से सेट कर सकते हैं. प्रूफ रीडिंग क्या है? प्रूफ रीडिंग ये होती है कि आप जो कुछ लिख रहे हैं या आपने जो कुछ लिखा है उसको अच्छे से पढ़ा जा सके, उसमें कोई गलती ना हो. आगे देखते हैं जो राइटिंग यानी लिखने की जो मुख्तलिफ स्टाइल हैं उनमें से फॉर्मल, इनफॉर्मल, परसुएसिव और नरेटिव भी हैं. फॉर्मल क्या है? रस्मी ख़त जो आप लिखते हैं. इनफॉर्मल जो होता है गैर रस्मी, आप जैसे अपने घर वालों को लिखते हैं. फॉर्मल जो होता है जैसे किसी दफ्तर वगैरह के लिए आप लिखते हैं. और परसुएसिव क्या होता है? जिसमें कोई ऐसी बात आप किसी को लिखते हैं जिसमें जो है वो किसी मसले या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर आपने दूसरे बंदे को कायल करना हो, उसको परसुएसिव कहा जाता है. नरेटिव क्या होता है? ऐसा तरीक़ाकार, ऐसा अंदाज़ जो बहुत अच्छे से बयान किया गया हो और आसानी से समझ आने वाला हो. Let me know if you would like me to expand any of the topic on these skills. That's all for today. Keep watching for more learning. Thanks a lot. God bless you. See you in the next video. Bye-bye.